Fine. We'll continue graphs. Okay, let's say if I have equation like this, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Then this is equation for ellipse. Ellipse is something of this sort. ऐसा तो कुछ तो है. It's not exactly. It's a flattened circle types. And you should know that कि a के नीचे x के नीचे we have a square, right? That a represents this value. And y के नीचे we have b square, this b represents this value. For example, if I have equation like this, x square upon 4 plus y square upon, let's say, 16 is equal to 1, it means the ellipse will be like this. Because see, understand, यहाँ पे a का value is what? 2 and b का value is 4, right? So b is bigger. So ये this will be your 4 and this will be your 2. Is it making sense? Because a square है ना नीचे, है ना? समझ रहा है क्या? Okay. अच्छा. Now see, the axis is bigger. उसको बोलते हैं अपन major axis. In this case, this is major axis. In this case, this one is major axis. जो भी वैल्यू बड़ा है. And this will be called as so x axis is the major axis here, and y axis will be the minor axis here. And what will be a called here? A will be called as semi major axis, because major axis का half it is, समझा? And b को बोलेंगे semi minor axis. These are some terms that you should know. Semi major, semi minor. Okay. And ellipse will have 2 points which are called as focal points. इसको बोलते हैं focal. F1, F2. Focuses of ellipse. ठीक है? ये सब कुछ, if I say focus, generally what really happens कि when you talk about sun and earth, तो sun is actually at one of the focus. तो ellipse ऐसे बनता है sun का. यहाँ पे दूसरा focus है. Sun is at one of the focus and earth is revolving around the sun. Something of this sort happens. Okay. So if I say focus, that it does not mean कि we're talking about origin or center. Center is different, focus is different. Okay. You will learn more of these properties when you do conic section in math. So maths में ज़्यादा डिटेल में, physics में हम सिर्फ थोड़ा सा equation we are seeing and we just want to know some terms. Okay. Also, have you heard about this word called apogee perigee? सुना है क्या? सुना है. ठीक है. हाँ, तो वो आएगा, मतलब वापस बात करेंगे कि जब सन के बहुत पास में रहे तो वो पॉइंट को एपोजी बोलते हैं, एंड देन दूर है तो पेरिजी बोलते हैं. हाँ, तो विल टॉक अबाउट दोस एपोजी पेरिजी, वो सब वर्ड्स भी आएगा. तो अभी फिलहाल आई विल नॉट बग यू देन. ओके. वन मोर थिंग आई कैन टेल यू बिफोर you close it. So this is your, let's say, focus. This is okay. So this distance is called as r1. This distance is called as r2. See, for us it's like sun यहाँ पे and then earth is rotating, right? So r1 represents, for us it is sun. R1 is the distance when the earth is very closest to sun. Okay. And r2 is the distance when earth is far away from sun. Okay. The maximum distance possible basically. So r1 का वैल्यू होता है a into e1 minus e, and r2 का वैल्यू होता है a into 1 plus e. Now what is e? E is called as eccentricity. And हर कर्व का दिस वैल्यू इज डिफरेंट कि हाउ फ्लैट वो कर्व का. तो इसेंट्रिसिटी ना फिजिक्स के स्कोप के बाहर है. ओके. फॉर अस दे विल गिव द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी. मैथ्स में दे विल टीच यू कि इसेंट्रिसिटी एक्जेक्टली मतलब क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स. बिकॉज क्या होता है ना कि यू अंडरस्टैंड कोनिक सेक्शन में क्या होगा, यू नो व्हाट इज कोनिक सेक्शन, राइट? कि यू कट द कोन एंड व्हाटएवर शेप यू गेट, दैट इज कॉल्ड एज कोनिक सेक्शन. जैसे इफ यू कट इट लाइक दिस विल बी द एलिप्स का शेप, है ना? और अगर यहाँ पे कट किया तो दिस इज सर्कल. ऐसे फ्लैट कट किया तो सर्कल कटेगा, राइट? कैन यू इमेजिन 3D, है ना? और अगर कोन को ऐसे कट किया तो जैसे कोन, इसको यहाँ से कट किया तो ये कटा पैराबोला. तो कोनिक सेक्शन में ये सब डिस्कस करते हैं कि कर्व का इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है एंड हाउ डज इट अफेक्ट द कर्व ओवरऑल इन जनरल. फॉर अस इट इज जस्ट अ कांस्टेंट. ओके. तो इफ दे गिव मी इसेंट्रिसिटी एंड दे गिव मी ए का वैल्यू, आई कैन फाइंड नियरेस्ट डिस्टेंस एंड फारदेस्ट डिस्टेंस. तो ये सब फॉर्मूला अभी देख के रखो. वी विल डू दिस अगेन इन ग्रेविटेशन, बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि देयर आर टर्म्स लाइक दिस, इसेंट्रिसिटी, एपोजी, पेरिजी, सब ये सब पढ़ेंगे तभी. तो यहाँ पे एपोजी, इसको एपोजी बोलेंगे, इसको पेरिजी बोलेंगे, थिंग्स लाइक दैट. क्लोजेस्ट डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस, वो सब टर्म आ जाएगा. तो अभी के लिए इतना समझना है हम लोगों को कि अगर एक्स स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर और वाई बी स्क्वायर है और दोनों के पीछे प्लस साइन है, ओके, ठीक है, तो हाई चांसेस की वी कैन गेट एलिप्स का शेप. बोथ आर क्वाड्रेटिक. लाइक पीछे वाले सम में इफ यू रिमेंबर
y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था ना पैराबोला के लिए. तो पैराबोला में ओनली x इज क्वाड्रेटिक, y इज नॉट क्वाड्रेटिक. समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे x और y दोनों क्वाड्रेटिक है. तो ये सब थोड़ा ध्यान दो, मतलब ये x और y दोनों क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे 1 लिखा है, बीच में प्लस साइन है, दोस थिंग्स यू शुड नोटिस. तो ऐसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है तो चांसेस है कि वो एलिप्स हो सकता है. इज मेकिंग सेंस थोड़ा सा? ठीक है. लास्ट थिंग यू शुड नो एरिया ऑफ एलिप्स. यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज पाई AB. तो इट इज पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस. समझ में आया? In fact, circle is a special case of ellipse. If your a and b are equal, you get circle, which means if I have to write circle का equation, तो क्या रहेगा? It will be, so a will be equal to b is equal to r ना, so you get x square plus y square is equal to r square. That is equation of circle. समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे, if I just make a and b are equal, a और b को r ले लिया अगर मैंने, तो यहाँ पे x square अपन r square होगा, यहाँ पे y square अपन r square होगा. टेक यू नो आर स्क्वायर कॉमन लेके वहाँ ले जाओ तो विल गेट दिस इक्वेशन. समझा? तो बट दिस सर्कल सेंटर विल बी ओरिजिन. समझ में आया क्या? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट 0,0. इफ यू वांट टू शिफ्ट द सेंटर, लेट्स से आई वांट टू शिफ्ट द सेंटर टू सम डिफरेंट पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज a and this point is b. If you want to shift the center, then the equation will look like this: x minus a the whole square plus y minus b the whole square is equal to r square. यहाँ पे r is the radius, a and b are the coordinates of center. समझ में आ रहा है? Just what you need to understand, equation देख के कर्व समझ में आना चाहिए. जब आएगा तो वापस बताएंगे, बट अंडरस्टैंड एक बार देख लो सर, बाद में वापस यू शुड गेट डेजा वू फीलिंग. समझा क्या? तो इफ यू हैव इक्वेशन लाइक दिस, देन द सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन, इट इज एट सेंटर इज एट a, b. ठीक है? पैराबोला वी डिड इट, अभी मैं वापस बताऊंगा तुमको बाद में. ठीक है, लास्ट लेक्चर में वी डिड दैट. इसमें और क्या चाहिए तुमको? सर्कल बता दिया. हाँ, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, बिकॉज a and b आर इक्वल. तो एक्चुअली एरिया ऑफ इलिप्स का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, बट a and b आर इक्वल टू r. हाँ, समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? कॉपी करो फटाफट. सन, तो यू शुड नो दैट कि आवर ऑर्बिट अराउंड सन, अर्थ का ऑर्बिट अराउंड सन इज इलिप्टिकल इन नेचर. ओके, बट सन इज नॉट एट द सेंटर, it is at one of the foci, that you should know. So the ellipse will have two focus, so one of the foci of the sun is there. समझा? See, there is something as hyperbola. उसका equation is very similar to your ellipse, but there is a minus sign यहाँ पे, बस that's it. That's the change. And hyperbola is a shape which is formed between two lines like this. देखो, there will always be a reference line, उसके बीच में hyperbola form होता है. जैसे these two reference line के बीच में, and it's slightly broader, मतलब parabola से कंपेयर करता हूँ, is hyperbola. It will look like this. This shape is hyperbola. If I have to compare 1 to 1, तो देखो ऐसा सर्कल, उसके बाद जो कर्व आता है इट इज एलिप्स, उसके बाद जो कर्व आता है इट्स पैराबोला, और उसके बाद जो कर्व आता है इट्स हाइपरबोला. मतलब जैसे जैसे क्या बोलते हैं, दिस इज सर्कल, फिर थोड़ा बिगर माउथ इज एलिप्स, थोड़ा और बड़ा माउथ हो तो पैराबोला आता है. तो 1 to 1 कंपेरिजन किया तो, और थोड़ा और बड़ा माउथ हो तो हाइपरबोला. एंड यू शुड नो दैट कि ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर ट्रैजेक्टरी ऑफ सैटेलाइट्स. ओके, तो जो नॉर्मल सैटेलाइट्स है जो अपने अर्थ का जो घूम रहे, दे हैव दिस काइंड ऑफ ऑर्बिट्स. एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला भी ऑर्बिट्स में आते हैं. हाइपरबोला के सम्स हमारे सिलेबस में नहीं होते, बट इफ यू सॉल्व ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम्स, वी हैव प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइपरबोला आल्सो. पैराबोला भी हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, मतलब ठीक है, तुमको ज़्यादातर एलिप्स और सर्कल तक ही विल डू इन ग्रेविटेशन आल्सो. ओके, बट यू शुड नो कि इफ आई कंपेयर 1 to 1, तो बिगर द माउथ वैसे वैसे शेप्स होता है. एलिप्स का थोड़ा सा छोटा, सर्कल से कंपेयर किया तो एलिप्स का थोड़ा बड़ा है, पैराबोला का और बड़ा, और हाइपरबोला सबसे बड़ा होता है कंपैरेटिवली. हम सेम समझा क्या? अच्छा, हाइपरबोला क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज दिस काइंड ऑफ हाइपरबोला इज वेरी कॉमन फॉर अस. ठीक है, व्हेन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, you will get equation like this: y is equal to some a upon x, या you can say xy is equal to a. It's very common. For example,
यू टेक v इज इक्वल टू आई आर. अगर मुझे किसने बोला कि ग्राफ बनाओ बिटवीन लेट्स से r वर्सेस i, तो आई नो दैट r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i, राइट. ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे क्या बोलते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, वहाँ पे भी वी गेट हाइपरबोला. ओके, दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हाइपरबोला, जहाँ पे द इक्वेशन आल्सो लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज सिंपलर हाइपरबोला which is called as rectangular hyperbola. तो if I have axis like this, ऐसा एक्सिस है अगर xy एक्सिस, तो ये वाला हाइपरबोला क्या करता है, जनरली हाइपरबोला से टू दिस टू रेफरेंस लाइंस, राइट. रेफरेंस लाइन के बीच में ही इतना हाइपरबोला बनता है, ठीक है. बट इफ योर रेफरेंस लाइन इज xy एक्सिस इटसेल्फ, देन दैट काइंड ऑफ हाइपरबोला इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मतलब xy एक्सिस को मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, देन दिस काइंड ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पे जो हाइपरबोला बनेगा उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो इट इज समथिंग लाइक दिस, शेप इज लाइक दिस, ऐसे, ठीक है. दिस इज एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो इट इज आल्सो हाइपरबोला ओनली, बट इट इज टेकिंग xy एक्सिस एज द इट इज रेफरेंस लाइन. इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. रेक्टेंगुलर बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है. समझ में आ रहा है क्या. तो ये वाला हाइपरबोला बहुत कॉमन है अपने इसमें. तो अगर किसने बोला कि व्हाट इज ग्राफ ऑफ r वर्सेस i, तो आई विल से द ग्राफ इज लाइक दिस. दिस इज द ग्राफ ऑफ r वर्सेस i या i वर्सेस r, व्हाटएवर यू से. समझा क्या. तो इफ समथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, द ग्राफ इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इज मेकिंग सेंस. इफ समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन. समझ में आया ना, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ठीक है. अगर ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वी शुड नो इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है. ओके, अच्छा, ये जो लाइन देखो, दिस कर्व विल मीट x एक्सिस एट इंफिनिटी, ठीक है. सेम ये x एक्सिस y एक्सिस को इंफिनिटी में मिलेगा. ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट्स, ठीक है. एसिम्पटोट का मतलब क्या होगा कि इट विल मीट द एक्सिस एट द इनफिनिट पॉइंट, कहीं इंफिनिटी में जाके मिल रहा है, मतलब. समझ में आया. तो दिस टर्म्स इज शुड नो. एसिम्पटोट बोला मतलब कर्व एक्सिस को मिलेगा बट इनफिनिटी पे जाके. एनी क्वेश्चंस. तो ये सब टर्म्स यू विल लर्न मैथ मोर, ठीक है. और अगर फिजिक्स में मैंने कभी यूज किया तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है. एनी क्वेश्चंस. कॉपी कर लो फटाफट. देखो, इफ आई ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x, ग्राफ लुक्स लाइक दिस. इट्स लाइक अ वेव, ऐसे. दिस इज द ग्राफ, ओके. एंड यू मस्ट नो कि साइन का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 1, ठीक है. दिस इज 0 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज -1, ठीक है. एंड लुक एट द नेचर ऑफ द ग्राफ. व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ इज कि दिस साइन थिंग इज रिपीटिंग. सी, ये कर्व एक बार आया फिर वापस से आएगा, ठीक है. दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग. द ग्राफ इज रिपीटेटिव इन नेचर. सेम चीज, दिस इज वन साइकिल, राइट, लाइक अ वेव. दिस वेव विल कीप ऑन रिपीटिंग, इजंट इट. तो ग्राफ टेल्स मी दैट, क्या पता चल रहा है इससे कि ग्राफ ये बता रहा है कि भाई ये पीरियोडिक फंक्शन है. यू नो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? फंक्शन दैट विल रिपीट इटसेल्फ, ओके. एंड यू मस्ट नो दैट कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज 0, ठीक है. दिस इज पाई यू मीन 180 डिग्रीज, राइट. एंड देन यहाँ पे दिस इज 2 मीन्स 360, ओके. तो वन साइकिल is of 360 degrees or 2 pi. That means we can say this is a periodic, it's a periodic function. Function मतलब graph, ठीक है, with time, with period as 2 pi or 360. That means the value will repeat after every 360. तो sin 0 का वैल्यू जो होगा और जो sin 360 वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, या sin 30 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, एंड 360 + 30 का वैल्यू भी सेम होना चाहिए. हाँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक, ओके, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, मैक्स वैल्यू इज 1, तो रेंज वी कैन से इज बिटवीन 1 to -1. समझ आएगा. एंड इफ आई वांट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन, ठीक है, तो इट विल बी 0. मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ साइन निकाला, अगर साइन का एवरेज वैल्यू फॉर वन साइकिल 2 पाई के लिए, इट विल बी 0, बिकॉज इक्वल पॉजिटिव वैल्यू एंड इक्वल नेगेटिव वैल्यू. समझ में आएगा. एवरेज वैल्यूज वी कैलकुलेट इन एसी सर्किट्स. एसी सर्किट में जो अपना करंट है उसका ग्राफ ऐसे ही चलता है. इनफैक्ट दिस ग्राफ विल आल्सो कम इन वेव्स, बिकॉज वेव का ग्राफ भी साइन ग्राफ ही रहता है. समझ में आया क्या, ठीक है. ऑल्सो यू शुड नो कि दिस पार्ट इज 90. देखो, ये 0 है, ये 180 है, दिस इज 90. तो फ्रॉम 0 to 90, साइन एज द एंगल का वैल्यू इंक्रीजेस,
साइन का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है ना, देखो ना 0 से 90 में एंगल 0 से 90 जा रहा है, सो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, बट 90 से 180 में देखो फ्रॉम 90 टू 180 थीटा वैल्यू इंक्रीजेस बट साइन का वैल्यू डिक्रीजेस, राइट, तो साइन डिक्रीजेस. These things you should also know because we will need this when you calculate वो वेरिएशंस, फोर्स का भी वेरिएशन निकालते हैं. कभी फोर्स क्या होता है एंगल पर डिपेंड करता है, तो देखना पड़ता है कि 0 से लेकर 90 में देख रहे हैं तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, बट 90 से लेकर 180 में साइन का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, तो वो हिसाब से हमको फोर्स भी चेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझा मतलब. तो ये तुमको पता होना चाहिए कि वैल्यू का हो क्या रहा है, मतलब कौन से रेंज में हाउ द फंक्शन इज बिहेविंग. तो 0 से 90 में साइन इंक्रीजेस बट 90 टू 180 में साइन डिक्रीजेस, द कर्व गोज डाउन. समझ में आया क्या? तो पीरियोडिक है टाइम, इसका जो पीरियोडिक है, व्हाट इज द साइकिल पीरियड, इट इज 2 पाई और वी कैन से 360. रेंज इज फ्रॉम 1 टू -1, ओके. एवरेज वैल्यू फॉर होल साइकिल विल बी 0, ठीक है, एंड दिस रेंज में इट इंक्रीजेस एंड दिस रेंज में डिक्रीजेस. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, कॉस का ग्राफ और साइन ग्राफ सेम ही है, इफ आई ड्रॉ, बस थोड़ा सा फर्क है. यू लुक एट कॉस का ग्राफ, इट इज द सेम बट साइन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कॉस स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ग्राफ गोज लाइक दिस. ऐसा ग्राफ है, मतलब ठीक है, सेम ही ग्राफ है, एग्जैक्ट सेम, बट द ग्राफ इज काइंड ऑफ शिफ्टेड. इफ यू सी इसको प्रॉपर्ली, तो ऐसा शिफ्ट हो गया, मतलब ऐसा, मतलब ये साइन को इधर ले लिया पीछे, ठीक है, तो इट इज सेम एज कॉस ग्राफ. इज मेकिंग सेंस फॉर ट्राइंग टू से? साइन एंड कॉस ग्राफ इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है, तो ओनली थिंग इज इट इज स्लाइटली शिफ्टेड, समझा, ठीक है, पीछे लिया तो मतलब ग्राफ वही हो जाए. तो वी से दैट दिस शिफ्ट इज हाउ मच का, ये शिफ्ट जो है, ठीक है, ये शिफ्ट 90 का है, दिस इज 90, समझा, ये 90 का शिफ्ट है, मतलब यू सी ना, ये वाला पार्ट 90 है, राइट, ठीक है, तो 90 से शिफ्ट किया अगर, तो आई विल गेट कॉस का ग्राफ, समझा, ठीक है. तो वी कैन से दैट यू हैव लर्न दिस, राइट, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, थिंग्स लाइक दैट, इसलिए वो रीजन है इसका, बिकॉज 90 प्लस थीटा में 90 से शिफ्ट हुआ ना, तो 90 प्लस जो साइन का वैल्यू अभी है वो 90 प्लस में कॉस में मिलेगा एंड सो ऑन. समझ में आ रहा है? बिकॉज 90 का शिफ्ट है, तो वी से दैट दिस शिफ्ट will be called as phase difference when you talk in terms of waves. Waves में there's a term called as phase difference. Phase difference को ग्राफ में shift बोलते हैं. तो if you can one to one compare कि cos और sin में shift कितना है 90 का, तो just write shift, अभी इसको shift बोल रहे हैं, बाद में इसको phase difference बोलेंगे. तो when I say phase difference in waves, you should know that this shift in graph. Shift is 90 का, समझ में आया क्या? Also we say that कि cos has started before, cos पहले ही चालू हो गया था sin से, साइन बाद में चालू हुआ, ऐसे बोलते हैं, समझा ना, मतलब ऐसे देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज लीडिंग एंड लैगिंग. तो वी से दैट कॉस फंक्शन लीड्स साइन फंक्शन बाय 180 डिग्रीज, सॉरी बाय 90 डिग्रीज, माय बैड. समझ में आया क्या? देखो शिफ्ट कितना है 90 का, तो हम लोग से पहले कौन चालू हुआ, पहले कॉस चालू हुआ, बाद में साइन चालू हुआ, ऐसे बोलते हैं, ठीक है. तो इसलिए बोलते हैं कि कॉस लीड करता है, साइन लैग करता है. कितने से लैग करता है? 90 से लैग करता है. तो ये लीडिंग लैगिंग, ठीक है, कितना शिफ्ट है उसको, वो सब चीज तुमको पता होना चाहिए. बाकी तो सेम बाकी ये भी पीरियोडिक फंक्शन ही है, ठीक है, इसका रेंज भी 1 से लेकर -1 ही है, ओके. इसका भी एवरेज निकालेंगे एक साइकिल में तो 0 ही मिलेगा, बिकॉज इक्वल पॉजिटिव वैल्यू एंड इक्वल नेगेटिव वैल्यू. सी दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई, दिस इज 90 फॉर यू, दिस इज 180 फॉर यू, दिस इज 270, दिस इज 360. तो साइकिल एक साइकिल में इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव वैल्यू. समझ में आ रहा है क्या? समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. द व्हाट यू हैव टू लर्न इज साइन एंड कॉस आर exactly same graph, the only thing is there's a shift में we say that कि cos started before sin, how much before? 90 before, so there's a phase difference or shift of 90 degrees, समझा. there's another way of talking about it, we say cos leads sin by 90, समझा. also now if you talk about the range, now look at this, 0 to 90 में theta increases but cos theta decreases, है ना. देखो 0 से 90 में क्या हो रहा है कि cos का वैल्यू कम हो रहा है, समझ में रहेगा, ठीक है. तो ये तुमको पता होना चाहिए कि 0 से 90 में यहाँ पे साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बट कॉस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, समझा. तो व्हेन यू आर एनालाइजिंग फोर्सेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉस के ऊपर डिपेंडेंट है तो 0 से 90 में उसका वैल्यू कम होएगा, साइन पे डिपेंडेंट है तो इंक्रीज होएगा. एनी क्वेश्चंस? ठीक है. एंड लास्ट ग्राफ इज टैन ग्राफ. टैन ग्राफ का इसलिए बनाते हैं बिकॉज थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, आई टेल यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. टैन का रेंज बहुत बड़ा है एक्चुअली. Tan graph looks like this. Okay, so I have to draw tan graph. Is something of this.
ऐसा कुछ तो ग्राफ है। This is tan graph. Okay, and this range, this is 0 degrees, this is 90 degrees, this is minus 90 degrees. Okay, and see in this range minus 90 to 90, ये रेंज में tan का जो वैल्यू है इट कैन गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो मतलब बेसिकली tan फंक्शन कैन टेक एनी वैल्यू, समझा, अनलाइक साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस का वैल्यू लिमिटेड है, वो 1 और माइनस को छोड़ नहीं सकता, मतलब द रेंज इज लिमिटेड। ठीक है, tan कैसा है, tan कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, समझा। एंड दैट इज व्हाई, ठीक है, मैथ्स में और फिजिक्स में भी कभी कभी अगर ये कुछ सम सॉल्व करना होता है तो हम लोग अननोन वैल्यू को x लेते जनरली, राइट, मैथ्स में कि नहीं पता तो x ले लेते, राइट। इंस्टेड ऑफ x आई कैन टेक tan थीटा आल्सो, बिकॉज़ x क्यों लेते हैं, बिकॉज़ x कैन बी एनी वैल्यू, even tan theta can be any value. What is the advantage? I can mix trigonometry का formula in such cases. अगर मुझे trigonometry का एडवांटेज लेने का है तो अननोन वेरिएबल्स को मैं tan theta भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्यों करते हैं वो तुमको बता रहा हूँ, क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे x कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं वैसे tan theta भी कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। इनफैक्ट कभी कभी तुमको जब एंगल पूछते हैं, ठीक है, स्पेशली वेक्टर्स में व्हेन यू डू डेरिवेशन, वेक्टर का जो एंगल निकालते हो tan में निकालते हैं हम लोग। रीजन बीइंग tan का रेंज बहुत बड़ा होता है, साइन लिया या कॉस लिया तो देखना पड़ता है वैल्यू 1 को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझा। tan में कोई टेंशन नहीं है, वैल्यू कैन बी एनीथिंग, समझा। अच्छा, ये ग्राफ भी रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे जैसे cos और sin रिपीट होता है वैसे दिस आल्सो रिपीटिंग। इवन tan इज पीरियोडिक फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर, दे विल रिपीट देयर वैल्यूज, बट फर्क ये है कि sin cos का रेंज इज -1 to 1, बट tan कैन टेक एनी वैल्यू, इसलिए वेरिएबल्स के प्लेस पे आई कैन टेक tan थीटा आल्सो, समझा। बट वी टेक इट वैसे स्पेशल केसेस में और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में जहां पे आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। समझ में आया, थोड़ा सा लिख लो इनसे ना। So we have y is equal to e raised to x, y is equal to e raised to minus x, and one graph is y is equal to 1 minus e raised to minus x. Okay, this graph is used in terminal velocity. ये ऐसे ग्राफ है, ऐसा कुछ, it will eventually reach 1. This value is 1. This value is 1. What's the value of E? E is actually, E is a constant actually. E is Euler's number 2.718, so on. E raised to x, the graph looks like this. It's called exponential increase. It will go like this. ऐसा ग्राफ होता है, मतलब the curve increases sharply. Okay. E raised to minus x, curve will decrease sharply. Exponential decrease बोलते हैं इसको, ऐसा ग्राफ है। Okay. Exponential increase, exponential decrease. Okay, and that is actually, that graph is used in, I don't know whether you have heard about capacitor, सुना है वर्ड, तो वो कैपेसिटर रेजिस्टर वहाँ पे काम आता है। तो अभी फिलहाल के लिए ठीक है, मतलब ये सिर्फ लिख के रखो, जब आएगा तो बता देंगे। टर्मिनल वेलोसिटी, कैपेसिटर, ऐसे सब जगह पे ये ग्राफ काम आता है। ओके, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, मतलब द वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, एंड लास्ट में 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स का ग्राफ। ये 3 ग्राफ पता होना चाहिए। okay? उसमें भी ये 2 ग्राफ जो है, ठीक है, यू विल सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स इन केमिस्ट्री ऑल्सो, when you learn about chemical kinetics, वहाँ पे काम आता है। और फिजिक्स में ये काम आएगा तुमको when you learn something called as radioactive decay law, वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ देख के रखो, यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि पॉजिटिव पावर है तो ऐसे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इट विल इवेंचुअली रीच 1। ओके, दैट इज हाउ इट विल लुक। ठीक है, कॉपी दिस एंड दैट्स इट। आई थिंक ग्राफ के लिए इतना काफ़ी है। कैलकुलस, तो कैलकुलस में मेजरली वी स्टडी टू देयर मोस्ट ऑफ, बट हम लोग को 2 ही चीज़ काम का, एक इंटीग्रेशन और दूसरा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स। ओके, टुडे विल डू इंटीग्रेशन फर्स्ट, ये वाला करेंगे हम लोग। ठीक है,
एंड दैट टू इज वेरी लिमिटेड, मतलब बट इसमें दो तीन चीज कर रहे हैं. एक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग, मतलब ठीक है. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इंटरप्रेट इंटीग्रेशन फर्स्ट, ठीक है. इंटरप्रेट लिख दिया मैंने, उप्स. बट अंडरस्टैंड दिस, किसका मतलब क्या है. स्पेलिंग में क्या हो गया. ओके एंड तो व्हाट इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब इन फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि फिजिक्स में अपने से क्या क्या चीज़ काम आने वाला है. ओके एंड सेकेंडली वी विल डू सम फॉर्मूले एंड यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू इंटीग्रेट. तो हाउ टू इंटीग्रेट वाला प्रॉब्लम सेकेंड रहेगा. एंड थर्ड वी विल डू टाइप्स ऑल्सो. टाइप्स में बेसिकली देयर समथिंग कॉल्ड एज डेफिनेट इंडेफिनेट, दैट आल्सो विल सी. ओके देयर आर 3 टाइप्स. उसमें से 2 टाइप अभी 11th में काम आएगा. थर्ड टाइप विल बी मोस्टली यूज इन 12th. ओके तो आ जाओ. समथिंग हैपेंड राइट. ये चलो आ जाओ यहाँ पे देखो. इट्स ओके. लेट्स से आई हैव अ ग्राफ something of this sort and I want to find area under the curve. Now see if the graph is like this, ऐसे कोई ग्राफ बना के देगा अगर, तो उसका एरिया निकालना इज वेरी आसान बिकॉज we just say we'll divide into 2 parts. This one part is rectangle, the other part is triangle. तो कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा, है ना. तो द प्रॉब्लम इज टू फाइंड कर्व के नीचे का एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं उसको हम लोग. वाई? बिकॉज इन सर्टन केसेस इट विल रिप्रेजेंट सर्टन फिजिकल द वैल्यू, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. काइनेमेटिक्स में जब आऊंगा तो कराऊंगा ये सब, ठीक है. अभी हम इसको जनरल समझते हैं. लेट्स से वी हैव y वर्सेस x ग्राफ एंड द प्रॉब्लम इज टू फाइंड यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या है वो ढूंढना है अपने को. ओके तो वो करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं. तो ये नोन शेप है तो इट इज इजी, बट ऐसा ऐसा गंदा सा कोई कर्व दे दिया जैसे दिस इज y इज इक्वल टू लेट्स से सम 4x² का कर्व एंड देन दे आस्क मी टू गेट. तो कैसे करेंगे देखो. उन्होंने क्या किया, बोला कि क्या करो तुम, यू टेक वन लेट्स से आई टेक वन पॉइंट एज, एक पॉइंट ले लो x1, ओके, and then you take one more point as x2. This value will be called as delta x, right? Because x2 minus x1 will give you this value delta x. फिर उसने क्या बोला कि delta x into, if you do y, let's say this value is y. Now what is y? It is corresponding, जैसे y is equal to 4x² दिया है, so x का value is 2, ठीक है. तो मुझे x y का value क्या मिलेगा. Imagine x1 is 2 and x2 is some 3 ले लो, ठीक है. तो y का value क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 16 और यहाँ पे क्या मिलेगा 36, ठीक है. समझो ऐसा कुछ सिचुएशन है. तो दिस y1 इज डिफरेंट एंड दिस y1 इज डिफरेंट. ओके एंड देन दे से कि चलो ये मिल गया, डेल्टा x मिल गया, तो तुम क्या करो कि डेल्टा x इंटू y कर लो. आई एम टेकिंग y एज दिस वैल्यू y1 को. ओके तो व्हाट आई गेट इज आई गेट एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, राइट. दिस इज y एंड दिस इज डेल्टा x. डेल्टा x इंटू y विल गिव मी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. नाउ इफ आई मेक दिस डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल, इसको छोटा कर दिया अगर, जैसे मतलब ये वैल्यू x1 लिया 2 और x2 3 लिया है. व्हाट इफ आई टेक x1 का वैल्यू एज 2 एंड x2 का वैल्यू एज 2.00000000000 होने से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू, तो क्या होगा कि दिस रेक्टेंगल विल श्रिंक. समझ में आएगा. श्रिंक मतलब एकदम छोटा हो जाएगा रेक्टेंगल. देखो जैसे ये कर्व था अगर, तो रेक्टेंगल विल बी लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन विल बी लाइक दिस, ठीक है. ऐसा करने का फायदा क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एरिया छूट रहा है ना. इफ आई गेट y into delta x, I will miss this area, right? है ना. But if I make my rectangle very very small, then this missed area will be very very less. थोड़ा सा एरिया मिस होगा, राइट. समझ में आया क्या. जितना छोटा ये डेल्टा x होगा, ठीक है, उतना ही एक्यूरेट मेरा, मतलब उतना ही एरिया मेरा मिस्ड बच जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू टेक वेरी 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 स्मॉल रेक्टेंगल सो दैट I hardly miss anything on the curve, ठीक है. ऐसे करके what I'll do, a very small delta x is called as dx. इसको बोलते हैं डिफरेंशियल x. डिफरेंशियल x का मतलब क्या है कि बहुत छोटा वैल्यू है, इतना छोटा कि इट्स ऑलमोस्ट जीरो. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक x1 as 2 and x2 at 2.001, सबट्रैक्ट करने पे डेल्टा x क्या मिलने वाला है 0.000 समथिंग मिलेगा, राइट. इट्स ऑलमोस्ट जीरो ओनली, ठीक है. तो इतने छोटे वैल्यू को वी कॉल एज dx, डिफरेंशियल x बोलते हैं इसको. समझा. डिफरेंशियल x क्या है, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो हम लोग उसको बोलते हैं कि dx. डेल्टा इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट 0 है, तो उसको dx बोलते हैं अपन मैथ्स में. समझा. डिफरेंशियल x का तो अच्छा, ये अगर बहुत छोटा है, अगर ये dx है
ठीक है. इफ दिस इज dx, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, देन y को चेंज होने का मौका ही नहीं मिलता. मतलब y will almost be constant. जैसे राइट नाउ सी x is 2, x1 is 2, x2 is 3 लिया, तो ये 16 और ये 36 मिला, राइट है ना. इफ आई टेक x1 as 2 एंड y1 मुझे मिला 16, द नेक्स्ट वैल्यू इफ आई टेक x2 as दिस वैल्यू, तो y1 क्या मिलेगा 16.000 समथिंग, राइट. तो ऑलमोस्ट 16 ही मिलेगा, ठीक है. तो इफ दिस इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, y is almost constant in that interval. समझ में आ रहा है क्या? तो y को y लिख सकते हैं. आई डोंट हैव टू राइट y1 y2. आई गेटिंग इट. अच्छा, ये सब करके क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ये छोटू सा रेक्टेंगल का एरिया. तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज y into dx. एंड इफ आई ऐड सच रेक्टेंगल्स कंटिन्यूअसली, आई शुड गेट माय एरिया अंडर द कर्व. But you're still missing वेरी स्मॉल. तो यू मेक वेरी वेरी स्मॉल, एकदम छोटा. जितना छोटा हो जाएगा, जितना एकदम समझ जीरो ही हो गया ऑलमोस्ट, तो वो एरिया बच जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? But then again, the answer is not going to be precise. हाँ, इट वोंट बी. ठीक है, देयर इज जुगाड़ फॉर दैट आल्सो. ओके, आई विल टॉक अबाउट इट, है ना. इसका जुगाड़ क्या बताते हैं. बट ये दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, इजंट इट. इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, मतलब ठीक है. जितना छोटा रेक्टेंगल लेंगे उतने मतलब एरिया निकालने चांसेस इजी हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब प्रॉब्लम पता क्या है कि टू ऐड दिस, ये एक रेक्टेंगल का एरिया मिल गया y dx, जो बहुत छोटा सा रेक्टेंगल है. ओके, बट इसको ऐड करने का तरीका क्या है? देखो, एडिंग के लिए वी हैव लर्नड दिस समेशन साइन. जैसे फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ i लिखा, वेयर i गोस फ्रॉम 1 to 10, उसका मतलब क्या है? हैव यू सीन दिस साइन? हाँ, समेशन साइन देखा है कभी तुम लोगों ने? ठीक है, फिर समेशन ऑफ i, ठीक है, वेयर i गोस फ्रॉम 1 to, इसका मतलब क्या है? इट इज 1 + 2 + 3 up to 10. For example, if I have summation of I square from 1 to 10, it means you have to do 1 square, 2 square, 3 square and so on up till 10. समझ में आ रहा है क्या? ये I का वैल्यू हम रेंज देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है. समझा? अब समेशन का प्रॉब्लम क्या है? See, I cannot write summation of y dx to get my area. Reason being there are दो प्रॉब्लम. पहला कि dx is almost 0, तो समेशन साइन इसको 0 ले लेता है, बोलता है ये तो 0 ही है ना, तो एनीथिंग इनटू 0 is 0, तो आंसर 0 आना चाहिए. दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1. ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिफरेंशियल एक्स. उसको डिफरेंशियल एक्स का मतलब नहीं मालूम. हमारे नॉर्मल मैथ्स में हमने इसके लिए स्पेस रखा नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1. प्रॉब्लम नंबर 2 क्या पता है क्या? लुक एट दिस, द वे इट इज एडिंग. 1 ऐड किया, उसके बाद 2 ऐड कर रहा है, फिर 3 ऐड कर रहा है. मतलब इफ आई ड्रॉ अ कर्व और ये लॉजिक से ऐड करा अगर, तो वो क्या करेगा? इस रेक्टेंगल को ऐड करेगा, फिर बीच को छोड़कर डायरेक्टली इसको ऐड करेगा. 1 को, 2 को, 3 को, बीच वाले कहाँ गए? समझा? तो वी कॉल दिस एज, समेशन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एडिशन. समझ में आया क्या? या बहुत लोग इसको डिस्क्रीट एडिशन बोलते हैं. डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस मींस कि एक नंबर ऐड किया डायरेक्टली फिर दूसरा, हॉप कर रहा है, मतलब बीच का पूरा नंबर छोड़ दे रहा है. 1 और 2 को ऐड किया ना इसने, बीच में जो बहुत सारा नंबर है, इनफिनिट नंबर्स इन बिटवीन, राइट. So this will not consider, summation does not consider only 1 को 2 को ऐसे. तो ये मैथ्स का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस. मुझे अगर एरिया चाहिए तो आई वांट टू ऐड कंटिन्यूअसली एवरीथिंग फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज, इजंट इट? तो द प्रॉब्लम इज दिस कि ये डिसकंटिन्यूअस है. समझ में आया क्या? तो इसलिए हम लोग, अगर हम लोग को एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो एडिशन के लिए वी कैन नॉट यूज समेशन. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या किया उन्होंने? देन न्यूटन इन्वेंटेड न्यू मैथ्स इटसेल्फ, और उसका नाम उसने इंटीग्रेशन दे दिया या कैलकुलस. समझ में आया क्या? तो नाउ दिस समेशन साइन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिंबल कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. ये सांप जैसा बनाया, दैट इज इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दैट विल बी द एरिया, एंड इट्स अ टोटली न्यू मैथ. पूरा नया मैथ है, मतलब ठीक है, इसके फॉर्मूला ही अलग है, ठीक है, और सब कुछ अलग है, नया. ठीक है, दिस मैथ विल रिकॉग्नाइज दिस dx, ठीक है, एंड विल टेल यू हाउ टू सॉल्व एंड गेट द एरिया अंडर द कर्व. समझ में आएगा? बट यू शुड अंडरस्टैंड फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx से क्या मिलने वाला है? कर्व के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व. दैट इज फर्स्ट यूज. सेकेंड यूज इज कि इफ आई वांट टू ऐड कंटिन्यूअसली, I can never go back to this symbol. I have to use this symbol. It also represents continuous addition. So continuously add करना है किसी चीज को, ठीक है, तो इससे तो नहीं कर सकते, इससे करना पड़ेगा. तो दो इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट एरिया अंडर द कर्व, सेकंड इज it will be used for continuous addition. और फिजिक्स में से बहुत करना पड़ता है. जैसे कभी व्हाट वी डू जनरली इज, बहुत बड़ा सिस्टम पे अगर काम करना है तो हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और वो स्मॉल पार्ट के लिए पूरा कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे अपन. समझा? जैसे इफ आई वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल छोटा सा पार्ट लेंगे बोर्ड का, उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढेंगे, एंड देन आई विल एक्स्ट्रापोलेट द रिजल्ट. तो एक्स्ट्रापोलेट मतलब आई हैव टू कंटीन्यूअसली ऐड. तो उस टाइम पे इसको नहीं यूज कर सकते, कंटीन्यूअसली ऐड करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन साइन. आर यू गेटिंग द पॉइंट?
तो समझ में आया इंटरप्रिटेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाई डू वी यूज इंटीग्रेशन फॉर टू थिंग्स, फर्स्ट टू कंटिन्यूअसली ऐड, सेकंड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। हाउ टू फाइंड दैट आई विल टीच यू, बट आई होप यू गॉट द इंटरप्रिटेशन पार्ट, समझ में आया ना, ठीक है, ओके। बाकी ये dx vx सिंबल विम्बल सब क्या है वो हम सब समझ जाएंगे, बट इतना समझो कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन कब इन्वोक करना है, जब भी एरिया चाहिए रहेगा तब यूज करेंगे इसको। सेकंड क्या बोलते हैं, कंटिन्यूसली ऐड करना है तभी यूज करेंगे। ये दोनों ही यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वो एरिया कुछ रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। क्यों एरिया निकालना है दैट विल सी, है ना। अभी एरिया चाहिए तो ये करना पड़ेगा, क्यों एरिया चाहिए वो देखेंगे चैप्टर में, देखेंगे कि एरिया क्यों चाहिए। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? गेट दिस, तो ये लिख लो ये पॉइंट, थोड़ा मैं लिखा देता हूँ उनको, जस्ट राइट, आई विल जस्ट गिव यू फ्यू लाइंस। इसको रिकॉर्ड नहीं करते। एनीवेज, तो ये लिखा ना कि तो these are symbols and this has to be some function of x, that is something that you understand. Now I'll give you some formulae, okay, and I'll give you examples तभी के तभी, ठीक है, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। Now see, we understood कि what is integration, okay, what is the symbol for integration, okay, now we have to understand कि इंटीग्रेट करते कैसे, तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, आंसर से रूट निकालना तुमको आता है, वैसे इंटीग्रेट करने का कैसा है वो तुमको सीखना है। तो I'll give one or two examples, types I will take in the next lecture. See, so you should leave one page for formula only. ओके, एक पेज फॉर्मूला के लिए छोड़ दो, बाकी सब तुम लिखो, ओके, ज़्यादा फॉर्मूला पे नहीं बट रखो। तो यहाँ पे वी हैव वाई और वी कैन से एफ ऑफ एक्स, वॉट एवर यू वांट टू कॉल, तो ये वाई रखते छोड़ो, वाई, एंड यहाँ पे आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ओके। तो इफ द इक्वेशन इज दिस एक्स रेज टू एन, एग्जाम्पल, इफ दे गिव मी वाई एज एक्स स्क्वायर, तो लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स रेज टू एन फॉर्मेट में है ना, एक्स रेज टू एन वेयर एन इज 2। तो इफ यू हैव ऐसा कोई एक्सप्रेशन एक्स रेज टू एन फॉर्मेट का, देन इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या बोलता है कि उसका व्हेन यू इंटीग्रेट द आंसर वुड बी एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सो वी आर नॉट डूइंग द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज पार्ट ऑफ मैथ, ओके, वी जस्ट टेक द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर। तो इसका मतलब इफ दे आस्क मी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, आई विल टेक एग्जांपल आल्सो, तो आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडरस्टैंड हम इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सिंबल्स है, ठीक है। तो ये एक्स रेज टू एन फॉर्मेट में है तो आई कैन यूज दैट फॉर्मूला, आंसर वुड बी एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इट इज सिंपली एक्स क्यूब बाई 3, दैट्स द आंसर, समझा। एंड सी द मोमेंट आई अप्लाइड द फॉर्मूला आई रिमूव द सिंबल्स, वो इंटीग्रेशन और डीएक्स दोनों को निकाल दिया। थोड़ा समझ में आ रहा है कि बहुत सर समझा? देखो सिंपल फॉर्मूला, देखो क्या क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया है, क्या वो एक्स रेज टू एन फॉर्मेट में है, n का वैल्यू क्या है 2, तो आई यूज द फॉर्मूला n plus 1 upon n plus 1। हाँ, दे विल गिव, किसको इंटीग्रेट करना देंगे ना, इफ यू वांट टू इंटीग्रेट समथिंग दे हैव टू गिव व्हाट टू इंटीग्रेट, राइट। तो दे विल गिव एक्सप्रेशन फॉर x, यू हैव टू इंटीग्रेट, समझ में आया? वेट इफ इट इज u plus v, मतलब ऐसा कुछ है, देखो दे गिव मी क्वेश्चन लाइक दिस कि y is equal to x cube plus x, ऐसा दे दिया, मतलब दे आर टू फंक्शंस एडेड है ना, दो लोग को ऐड किया, इसको u बोल देते हैं अपन, इसको v, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग इसको ऐड किया है, ऐसा कुछ दिया है अगर, तो देन हाउ टू डू इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx पूछा अगर, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस x dx, राइट, आई एम जस्ट पुटिंग द y का वैल्यू, ठीक है। तो दे से कि अगर u प्लस v फॉर्मेट है, एक दो लोगों को ऐड किया है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू द इंटीग्रेशन सेपरेटली एंड ऐड इट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आएगा, मतलब इंटीग्रल स्प्लिट कर दिया प्लस साइन में, ठीक है। अब यू कैन यूज द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पता है क्या, एक्स रेज टू एन फॉर्मेट है, ये पता है, तो व्हाट इज द आंसर, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, प्लस व्हाट इज द पावर हियर 1, तो एक्स रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, माई आंसर वुड बी एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। इज इट मेकिंग सेंस? तो व्हाट दो फॉर्मूला कराया, एक्स रेज टू एन है अगर, तो क्या आंसर आएगा, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अगर दो टर्म्स एडेड है तो दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेटली कर सकते हो, वो स्प्लिटिंग अलाउड है, यू कैन स्प्लिट द इंटीग्रेशन, सही, गेटिंग इट? समझा थोड़ा सा? कॉपी करो, फिर कॉपी करो और ये वाला ट्राई करो। अच्छा, इफ एक चीज और बता दें, नहीं तो चलो ये कर लो, एक्स रेज टू 4 प्लस रूट एक्स, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx। First you will copy this, okay, and then you will solve that sum. I'll pause and come.
That's the same thing. I just like Look at this. So write integration of x raised to 4 plus root x dx, correct? You can split because u plus v rule लगा सकते हैं. Okay, that would be root x dx, correct? And then we can write इसको तो ऐसे रखते हैं. We can convert this to x raised to half. है ना? Root means x raised to half, right? And then we can use the formula. Now we have to understand that we are integrating this term. Okay, so x raised to n format, so x raised to n plus 1 upon n plus 1, and this would be x raised to n plus 1 upon n plus 1, correct? That would be x raised to 5 upon 5, and this would be what? Plus, this will be 3. So 2 by 3, x raised to 3 by 2. Or you can write this by x raised, you know that, right? And now we can write as x cube the whole raised to half, which is actually root of x cube, which is x root x. So we can write this by x root x also. समझा क्या? समझा कि तो तोड़ गए? और सुनो. एक छोटा सा पढ़ा होता तो. If you have k f of x, okay, मतलब listen to me. Okay, if you have constant with a variable, मतलब ऐसा कुछ दिया है, देखो. Question is something of this sort कि y is equal to 4x 3x square दिया है, समझ लो. So you have a constant with a variable. When I write k f of x, मतलब there is a constant with a variable. So what you can do is you can take the constant out and just integrate the variable. समझा क्या? अगर constant variable साथ में है तो constant को integration से बाहर निकाल सकते हैं, and we have to just integrate the variable. So that means if they ask me integration of y dx here, I'll say integration of 3x square dx. Constant with a variable, you can remove the constant out and integrate the variable. and they must multiply. So what will be this? This will be x cube by 3 x cube. समझा? देखो वहाँ पे बोर्ड पे ये सब इंपॉर्टेंट है. द बेसिक स्टफ दैट वी आर डूइंग. कुछ भी फैंसी स्टफ नहीं कर रहे, हम इजी स्टफ कर रहे हैं. ओके, और देखो मोर फॉर्मूले. इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x. Cos x is sin x. ओके, एंड मैं इतना ही लिख रहा हूँ. ओके, एक और Cos x is minus cos x. सॉरी, integration of sin x. If they give me integration of sin x, so answer would be minus cos x. Integration of cos x would be sin x. If they give me integration of 1 upon x, so it will be ln x. हाँ, you should understand कि देखो ये फॉर्मूला, ये वाला अगर x, see if I ask you integrate, see if I ask you this, integrate 1 upon x dx, so you cannot do this. तो ये करके नहीं आएगा. देखो ये तो नहीं आएगा बिकॉज x रेज टू n plus 1 upon n plus 1 करोगे तो you will get answer as infinity, isn't it? तो ये वाला जो x रेज टू n वाला फॉर्मूला है, it is not applicable to n equal to minus 1. तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि n is not equal to minus 1. समझा कि बाउंसर है ना? ये फॉर्मूला you can use everywhere except n equal to minus 1. ठीक है, for n equal to minus 1 you have to use this formula. 1 upon x रहेगा तो ln x is the answer. Is it making sense? Ln x मतलब log x. हाँ, log x बोल सकते हो. ठीक है, is log x to the base e. Base 10. Base e. Normal log is base 10. If you write log x also it's fine guys. मतलब it's fine but I prefer to write ln x only. ln x means log to the base e. है ना? थोड़ा याद है क्या? और भी फॉर्मूला है. ठीक है, इनफैक्ट डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला रहेगा उसका उल्टा इज इंटीग्रेशन. बट अभी के लिए इतना काफी है फिलहाल के लिए. समझा? जस्ट डू वन सम क्विकली मेरे फॉर मी. एक सम कर दो. I give y is equal to 3x square plus 2x plus 1. ये कर दो. Find integration of y dx. Find integration of y dx. ये लो, लिख लो. क्या कहते? फॉर्मूला लिख लो and then you can solve this. Integration of y dx. ln मतलब होता है log, इसका मतलब पता क्या होता है? log x to the base e. E is Euler's number. हाँ, that 2.718 that number. You were not there क्या basic maths का फर्स्ट लेक्चर में? इसलिए तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा.
थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा, और आई शुड मेक इट लाइक दिस। मैं 1 नहीं करते रहो, तुम्हारे थोड़ा और अच्छा करते हैं, इसको 2 कर दो आपका। करो सॉल्व। हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकते, बराबर तो बोला उसने। देखो लुक एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 2 dx, राइट? So we can write like this, 3x square dx plus 2x dx plus integration of 2 dx, correct? Split the integration and अभी क्या करना है, to take constants out, so you have 3 integration of x square dx plus 2 integration of x dx and यहाँ पे plus 2 integration of is nothing, that means 1 dx and 1 को I can write as x raised to 0, तो मुझे क्या मिलेगा? x plus x square plus x. Correct. Which means it is x cube plus x square plus x. Formula वही है, x raised to n plus 1 upon n plus 1. So 0 plus 1 is 1 upon 0. So I remember like this. Integration of dx is actually x. मतलब मैंने से integration of dx actually अब integrating यहाँ पे जो 1 है वो लिखा नहीं है. हाँ. So integration of dx नहीं हो रहा है, मतलब समझो तुम. Actually integration of 1 हो रहा है, ठीक है? तो integration of 1 dx या integration of dx is actually x. तो 2 you take out, integration of dx will give you x. हाँ? हाँ डिवाइड। सर वो डेफिनेटली 2 का 2x है. ओह सॉरी 2x है ना, माय बैड, सॉरी। हाँ रुको, खत्म नहीं हो, रुको, कहाँ जा रहा है? सर क्लास है. कौन सा क्लास है? यहाँ पे कम्बैट नहीं चल रहा है क्या? ओके, वन लास्ट थिंग, राइट? डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ सॉरी, आई रिमेम्बर कि अभी बॉम्बे स्कॉलेज से एक्स्ट्रा पकाना है इसलिए, तो उनको हाँ हाँ, बट आई हैव टू प्रिपेयर देम ना, दैट इज द प्रेप फॉर, या ओके गेट दिस। तो दिस इज तो अच्छा ठीक है, ये तो समझ गए थे हम। सी टाइप्स का फंडा कुछ नहीं है, ज़्यादा सिंपल सा होता है। 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो हमने किया। मतलब यहाँ पे दे आर नॉट टेलिंग मी कि एरिया कहाँ से कहाँ चाहिए, मतलब कर्व दिया है तो कहाँ से कहाँ का एरिया चाहिए, यहाँ से x1 to x2 व्हाटएवर, दे आर जस्ट सेइंग कि जस्ट गेट मी द एरिया। समझ में आया? देयर वाज नो लिमिट्स गिवन टू यू, समझा? तो इफ द लिमिट्स आर गिवन देन वी से इट इज डेफिनिट। डेफिनिट इंटीग्रेशन विल लुक लाइक दिस, सेम इंटीग्रेशन ऑफ y dx रहेगा, बट नीचे a और b लिखा रहेगा। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो नीचे लिखा है, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इफ आई गिव यू द लिमिट्स देन दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट्स दिया है मतलब क्या? लोअर लिमिट मतलब ये वाला a, x का वैल्यू a इज लोअर लिमिट, x का वैल्यू b इज अपर लिमिट। तो यू आर टेलिंग मी कि यू वांट एरिया ओनली इन दिस रेंज, दैट्स इट, पूरा एरिया नहीं चाहिए मुझे, समझा? अगर रेंज दिया है या लिमिट्स दिया है तो दैट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट्स नहीं दिया है तो दैट्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है? अब मैथमेटिकली एक्चुअली हम लोग क्या करना चाहिए था कि देखो ये हमने जो भी पीछे सॉल्व किया है, इट्स ऑल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यू शुड ऑलवेज ऐड अ कांस्टेंट c हियर, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा एक कांस्टेंट c ऐड करना चाहिए आइडियली। तो प्लस c यू शुड राइट, व्हाई प्लस c? अबे उस भी नहीं, इसको ले इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट। हाँ, क्यों क्या हो रहा है देखो कि व्हेन यू टेल मी कि पूरा एरिया निकाल के दे, ठीक है, तो हाउएवर स्मॉल रेक्टेंगल यू टेक, सम एरर विल बी, समथिंग विल बी मिस्ड, राइट? तो इतने बड़े रेंज में इवन दो स्मॉल एरर काउंट, इसलिए इसके आंसर में जब ये आंसर आया तो प्लस c ऐड करना चाहिए आइडियली। फिजिक्स में थोड़ा स्किप कर देंगे अपन, जहां मन के वहां पे स्किप करना, रीजन भी होता है, बट समझो ठीक है कि आइडियली व्हेन यू सॉल्व इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इफ दे डोंट गिव यू लिमिट्स, आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला, वंस यू गेट द आंसर, यू शुड ऐड इंटीग्रेशन कांस्टेंट टू अकोमोडेट फॉर द मिसिंग एरियाज। समझ में आया क्या? ओके अच्छा,
इसमें क्या होता है कि आंसर मिलने के बाद यू टू पुट द लिमिट्स ऑल्सो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। इसका एक सम दिखाता हूं मैं कैसे करते हैं, ठीक है। ये टाइप 2 रहेगा जहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, लास्ट टाइप इज कॉल्ड एज लूप इंटीग्रेशन या सर्कुलर इंटीग्रेशन। सर्कुलर इंटीग्रेशन, दिस वी विल डू इन 12th गॉसेस लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। ओके, उसका सिंबल एक ऐसा है, इंटीग्रेशन रहेगा y dx, ऐसा सर्कल बना देंगे बीच में, which tells me that see understand suppose ये मेरा कर्व है और मैं स्टार्ट किया a से और एंड भी a पे ही कर दिया, तो कुछ एरिया मिलेगा मुझे नीचे? नहीं मिलेगा। I start from a and I go to some b, then I get area under the curve। समझा? However, this is true for open curve, this is an open curve। closed curve में क्या होता है? If I take a circle, तो what can happen कि if I start from this point and come back to this point again, the area will not be 0, it will be some value। कभी कभी ऐसा होता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा फिर भी एरिया इज नॉट 0। समझा? दैट हैपेंस इन क्लोज कर्व्स। ओपन कर्व में क्या है, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर दिया तो कुछ एरिया मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्लोज्ड में ऐसा नहीं है, शुरू करके खत्म किया तो कुछ ना कुछ एरिया मिल जाएगा। समझा? क्लोज्ड कर्व में जब इंटीग्रेट करते हैं तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहता है, ठीक है। जस्ट टू टेल यू दैट कि आई एम इंटीग्रेटिंग अ क्लोज्ड लूप एंड आंसर विल नॉट बी 0, आई पुट अ सर्कल देयर। समझा? टू वार्न यू भाई, हम क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट सेम रहेगा बट आंसर 0 नहीं होगा, तो उसके लिए वो सर्कल डालते हैं बस। समझा? तो दोस्त लूप इंटीग्रेशन विल कम लेटर, अभी नहीं आएगा, जब आएगा तो बताएंगे। समझे? इट मेकिंग सेंस? ठीक है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज्ड सरफेसेस बहुत जगह पे करेंगे हम लोग ये सब। सरफेस पे भी करेंगे और कर्व पे भी करेंगे। सरफेस पे होता है इन गॉसेस लॉ, कर्व पे होता है इन योर एम्पियर लॉ। समझ में आएगा कुछ टाइप्स? ठीक है, अब एक सम कराऊंगा बस इसका, ठीक है, एंड बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है। लिमिट्स एक करके दिखाता हूँ कैसे करना है, बाद में तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आराम से। बट फॉर्मूला सेम है, इसका फॉर्मूला अलग ऐसा नहीं है। जो हमने फॉर्मूला अब तक पढ़ा है एक्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल दे गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फॉर एग्जाम्पल, या बेसिक से करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है एंड दे आर सेइंग फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx where x is going from 2 to 4, ऐसा दिया है। ओके, व्हाट इज द लोअर लिमिट? 2, अपर लिमिट 4। अच्छा, ठीक है, यू शुड फॉरगेट अबाउट लिमिट्स फॉर सम टाइम अंटिल वी गेट द आंसर। तो भूल जाओ कि लिमिट्स है वहां पे, लिखना तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स? एक्स स्क्वायर डी का आया तो क्या लिखोगे? एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। एंड द मोमेंट यू अप्लाई द फॉर्मूला यू शुड फॉरगेट अबाउट द सिंबल्स, ये गया। ओके, आंसर मिल गया। अब करना है लिमिट सब्स्टिट्यूट, तो लिखो लिमिट्स, ये 2 है, ये 4 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। व्हाट यू हैव टू डू इज इन द प्लेस ऑफ x फर्स्ट यू विल पुट द अपर लिमिट। ओके, तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 4 क्यूब बाई 3, करेक्ट? समझा? देन माइनस लोअर लिमिट, तो इन द प्लेस ऑफ x यू पुट द 2 क्यूब बाई 3, तो आंसर वुड बी 4 क्यूब कितना है? 64 माइनस 8 अपॉन 3, जो भी आएगा क्या आएगा? दैट्स द आंसर। ठीक है, तो एक ही सम कराया तुमको, बट समझो मतलब कि यू सॉल्व नॉर्मली, ठीक है, वंस यू गेट द आंसर उसके बाद अपर लिमिट डालना है माइनस देन लोअर लिमिट। समझा? पूरा अपर लिमिट डाल के जो मिल रहा है एक्सप्रेशन माइनस लोअर लिमिट डाल के जो मिल रहा है वो। इज मेकिंग सेंस? कॉपी दिस, इनफ फॉर टुडे।